اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین گرامی، آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی ایک مرتبہ پھر آپ کو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے اربعین کے اس عظیم موقع پر، اس پرفضیلت موقع پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہدایت ٹی وی کی جانب سے آپ ان پروگرامز کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کا سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کربلا میں ایک مرتبہ پھر ازدحام ہے۔ لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے قدم بڑھائے روضہ شبیر کی طرف گامزن ہیں۔ ایسی ہی صورتحال میں وہ افراد بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو ظاہراً توانائی نہیں رکھتے، لیکن روضہ شبیر کی طرف اپنے انہی ضعیف قدموں سے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص بیساکھیوں پر چلا آ رہا ہے، کسی شخص کی چلنے کی توانائی نہیں تو وہ ویل چیئر پر چلا جا رہا ہے، کسی شخص اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے لے جا رہا ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے زائرین کی اور عاشقوں کی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے۔ اس اربعین کے موقع پر پیادہ روی میں اکثر افراد یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ کبھی ہمارے بچے ہم سے جدا ہو گئے، کبھی ہمارے گھر والے ہم سے جدا ہو گئے اور ہم پریشان ہوئے، لیکن ایک مرتبہ معجزاتی طور پر ہمیں وہ مل گئے۔ یقیناً کربلا عنایات اور الطاف کی سرزمین ہے، کربلا کرامات کی سرزمین ہے۔ یہاں پر کرامات ہوتی ہیں، یہاں پر لطف و عنایات ہوتی ہیں۔ ایک عورت جو کہ بصرہ کی رہائشی تھی، اربعین کے موقع پر ایک مرتبہ مضطرب ہوئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں امام کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارے پاس اسباب ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ اسباب ہیں جسے میں نے جمع کیا ہے پورے سال، کاروان جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو آمادگی کر لو، میں اپنی دونوں بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ تم اکیلی جا رہی ہو، ان دو چھوٹی بچیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، کیسے سنبھالو گی انہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے عباس پر یقین ہے، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کر روانہ ہوئی، کربلا پہنچی اور ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ انہی کے کاروان کا حصہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں زری کے سامنے کھڑی بلند آواز سے شکوہ کر رہی ہے۔ یہ شخص اس کے قریب گیا اور کہا کہ اے خاتون، تم عباس سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنے مولا سے کس طرح بات کرنی ہے، میرے دل میں ایک شکوہ ہے، میں بیان کر رہی ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے پلٹ گیا، امام کے روضے کی طرف گیا، سید الشہداء کی زیارت پڑھی، واپس پلٹا اور میں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ دیکھوں کہ وہ عورت وہاں موجود ہے یا نہیں۔ جب میں گیا وہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ عورت موجود ہے اور دو چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے برابر میں موجود ہیں جو اس کی چادر پکڑی ہوئی۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ اے عورت، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہارا شکوہ کیا ابھی تک جاری ہے؟ کہتی ہے کہ جس حد تک تم عباس کو سخی سمجھتے ہو، عباس اس سے کہیں زیادہ سخی ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا، کیوں ایسا بیان کر رہی ہو؟ تم تو شکوہ کرتی نظر آ رہی تھی، اب شکر کرتی نظر آ رہی ہو۔ کہا کہ میں جب اپنے گھر سے نکلی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان بچیوں کی حفاظت کروں گی،
راستے میں دونوں بچیاں مجھ سے جدا ہو گئیں. میں نے بہت ڈھونڈا, نہیں ملی. 3 دن گزر گئے. کاروان کا سالار میرے پاس آتا رہا اور کہا کہ تمہاری بچیاں نہیں ملی, اب ہمیں واپس جانا ہے. اگر اب بھی تمہاری بچیاں واپس نہ آئیں تو ہم مجبور ہیں کہ یا تو تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں یا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور بچیوں کو یہیں چھوڑ دو. میں بہت پریشان ہوئی اور میں حرم میں آئی اور میں نے کہا کہ عباس, میں آپ کے بھروسے اپنی بچیوں کو چھوڑ کر آئی, میں آپ کے بھروسے اپنی بچیوں کو اپنے شہر سے لے کر یہاں آئی ہوں, میری بچیاں کہاں ہیں؟ یہ میں التماس کر ہی رہی تھی, میں استغاثہ کر رہی تھی کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میری دونوں بچیاں آئیں اور میری چادر کھینچنے لگیں. یہ کہہ کر عورت زار و قطار گریہ کرنے لگی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جب میری بچیاں جدا ہوئی تھی تو میری بچیاں گونگی تھیں, بے زبان تھیں جب میں انہیں لے کر آئی تھی, لیکن جب مجھے یہ بچیاں واپس ملی تو میری چادر کھینچتے ہوئی یہ کہتی نظر آ رہی تھی, اماں اماں آپ کہاں ہیں؟ یعنی اس عباس نے کہ جو اتنے سخی ہیں, انہوں نے فقط میری بچیوں کو مجھے واپس نہیں لوٹایا بلکہ زبان کے ساتھ لوٹایا. عباس اتنے سخی ہیں. یعنی اس سرزمین پر جو مشکلات انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں یقیناً اس میں کوئی حکمت موجود ہے. عباس اس کاروان کے سپہ سالار ہیں. آج بھی جو کاروان پیادہ روی کا رواں دواں ہے, عباس اس کی سپہ سالاری کر رہے ہیں. بس جس کا سالار عباس ہو, اس لشکر کے سپاہیوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ جو ایک پرچم گرا تھا, آج وہ پرچم لاکھوں میں تبدیل ہو گئے. آج لاکھوں لوگ پرچم اٹھائے عباس کی نیابت میں, لبیک یا حسین اور لبیک یا عباس کی صدائیں بلند کیے امام کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیادہ روی پر ہماری گفتگو ہمارے مہمان کے ساتھ جاری ہے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ علی فخری صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں اور یقیناً دقیق مطالب ہیں اور واقعاً بندہ اس سے فردی طور پر استفادہ کر رہا ہے. ہماری گفتگو پچھلے پروگرامز میں جاری تھی اور گفتگو کو یہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ خود روایات میں وارد ہوا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے, لوگوں کو کچھ اطعام کا کتنا ثواب ہے, اور یہی ثواب جب امام حسین کے زائرین کے لیے بیان ہو تو وہ ثواب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں گفتگو ہماری چھوڑی تھی اور میں چاہوں گا کہ یہیں سے آپ ابتدا کریں کہ اگر یہی اطعام کا انتظام, کھانے پینے کا انتظام زائرین امام حسین کے لیے کیا جائے تو اس کا کیا ثواب اور کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی زوار الحسین. ہمیں یہ امید ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ان زائرین اور پیدل چلنے والے نجف سے کربلا تک اور باقی تمام جگہوں سے کربلا کی طرف پیدل راستہ طے کرنے والوں کو جو ثواب عطا کیا جاتا ہے, جو لطف و کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ ہمارے بھی شامل حال ہوں. چونکہ یہ ایک قانون ہے کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جوں ہی ارادہ کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, چونکہ ہم سب کی ایک خواہش ہے, ہم سب کی یہ تمنا ہے, کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے, ہم بھی پیادہ روی کرنے والوں کے ساتھ ہم ہوتے, ہم بھی مشی میں ہوتے, لیکن توفیق نہیں ہوئی. تو جنہیں توفیق ہوئی ہیں ان کو جو ثواب دیا جاتا ہے, جو تمنا اور آرزو رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس امید کے ساتھ ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ زائرین کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب
کتنا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہم کی سیرت یہ رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا خود فاقوں پہ فاقہ کر کے، غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا، یہ اہل بیت کی سیرت ہیں۔ اہل بیت نے یہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خود بھوکا رہیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ سبحان اللہ۔ تب اللہ تعالیٰ سورہ دہر کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر دیکھیں، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو سب سے نمایاں جو عمل اس میں دکھایا گیا ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ اگلا نقطہ ہے۔ اگر کسی کو کھلاتا ہے، کسی پہ کوئی احسان کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کپڑا دیتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی پہ منت نہیں لگانا، منت نہیں چڑھانا، اس پہ یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ تمہیں اس وقت کھانا کھلایا ہے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ اہل بیت نے کیا سکھایا ہمیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کی خاطر تمہیں کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تمہارے شکریہ کے منتظر ہیں اور نہ کوئی کسی جزا کے ہم منتظر ہیں۔ ہمیں اگر جزا چاہیے تو اس ذات باری تعالیٰ سے چاہیے۔ تو کھانا کھلانا، جس طرح روایات بھی آپ کے خدمت میں ہم نے پچھلے اس میں بیان کیا تھا، پچھلے حصے میں، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے راہ میں، زیارت کے راہ میں یا ذریح میں خرچ کرنے کے بارے میں ابھی آپ نے جو سوال فرمایا تھا، یہ سوال اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوال موجود تھا۔ اس وقت کتب روائی میں یہ موجود ہے، راوی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے، فما للمنفق فی خروجہ الیہ، اس شخص کو، انفاق کرنے والے کو، خرچہ کرنے والے کو کیا ملے گا جو راہ کربلا میں خرچ کرتا ہے؟ فما للمنفق للخروج الیہ، مولا کی طرف جانے کے لیے جو خرچہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ والمنفق عندہ، مولا کے ہاں پہنچ کر کربلا میں حاضری دے کر خرچہ کرتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کا اجر کیا ہوگا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ تو مولا امام ششم نے فرمایا، لہو درہم بألف درہم، فرمایا ایک درہم کے بدلے میں 1000 درہم اس کو دیا جائے گا، یعنی 1000 درہم کا ثواب اور اجر اس کو دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کے راہ میں، اس زیارت کے راہ میں، تو اس کو کتنا ثواب ملنا چاہیے؟ 10,000 کا، 10,000 کا ملنا چاہیے 100 روپے کے بارے میں، ایک کے 1000، تو ایک درہم کا کتنا ہونا چاہیے آقا؟ ایک درہم کا 1000 ہے، اور اگر 100 ہے 1 ہے، لاکھ ہونا چاہیے، 100 ہے تو 1 لاکھ ہونا 1 لاکھ ہونا چاہیے، 1000 برابر ہے۔ دوسری روایت میں ہے، محمد ابن سنان مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ایک عظیم راوی ہیں، ایک عظیم صحابی ہیں، آپ نے پوچھا مولا سے، جعلت فداک، مولا آپ پہ قربان ہو جاؤں آپ پر۔ ان اباک کان یقول، آپ کے بابا فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فی الحج یحسب له بکل درہم انفقہ 1000 درہم، حج کے راہ میں جو 1 درہم خرچ کرتا ہے اس کو 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ فرمائیں، فما لمن ينفق فی المسیر الی ابیک الحسین علیہ السلام، جو آپ کے بابا ابی کا کتابی رائے ہیں، حسین علیہ السلام کے راہ میں، زیارت کے راستے میں خرچ کرے، اس کو کتنا ملتا ہے؟ تو
मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यब्न सिनान, ए मोहम्मद इब्न सिनान, युहसबु लहू बिकुल्लि दिरहमिन अल्फुन व अल्फुन व अल्फुन व अल्फुन हत्ता अद्दा 10 मर्रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया, जो एक दिरहम राह हुसैन में खर्च करता है, ज़ियारत के राह में खर्च करता है, एक दिरहम के बदले में उसको 1000 1000 और 1000, यहाँ तक कि इमाम ने इसको 10 मरतबा दोहराया। तो एक दिरहम के बदले में 10,000 दिरहम खर्च करने का सवाब अल्लाह ताला उसे अता करता है। वर यरफ़अ लहू मिनद दरजाति मिस्लहु, यानी इतना खर्च करने का सवाब लिखने के अलावा इसी मिक़दार में उसका दर्जा भी बुलंद करता है। यानी एक तरफ से 1 रुपया खर्च करता है तो 10,000 खर्च करने का सवाब भी दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो राह खुदा में खर्च करना चाहता है, जहाँ पे 10,000 बराबर मिलता है, बेहतर है वहाँ पे खर्च करे। क्यों? अगर कोई बैंक प्रॉफिट 1 का 100 देता है तो उससे छोड़कर दूसरे बैंकों में कोई पैसा नहीं रखेगा। बेशक फ़ायदे की बात हो रही है। अगर हम ज़ाहिरी हिसाब से अगर देखें तो 1 के बदले में 10,000 दे रहे हैं तो यहाँ पे खर्च करना चाहिए। बेशक। और इसके साथ उसका दर्जा भी 1 दिरहम के बदले में 10,000 दर्जा उसका बुलंद कर देगा अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। तो ये एक बात, ये एक फजीलत जिसकी वजह से लोग ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, राह इमाम हुसैन में खर्च करते हैं। ऊपर वाली रिवायत से हमें पता चला रास्ते में खर्च करना और हरम में खर्च करने का सवाल रावी ने साथ में रखा। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खर्च करने में इमाम के जवाब में भी फ़र्क नहीं डाला इनके दरमियान में। रास्ते में अगर खर्च करे तो इसको इतना, अगर हरम में खर्च करे तो उसको इतना नहीं, बल्कि 1 दिरहम के बदले में 1000 दिरहम, पहली वाली रिवायत में। तो इससे ये पता चलता है 2 नुक्ता। पहला नुक्ता ये है कि मौला के राह में जो खर्च करता है वो चाहे रास्ते में आप खर्च करें, चाहे मौला के हरम में आप खर्च करें, दोनों का सवाब बराबर है। दूसरा नुक्ता, फिर भी ज़ायरीन के दरमियान में फ़र्क है खर्च करने वालों के दरमियान में। किसी को 1 का 1000 मिलता है तो किसी को 1 का 10,000 मिलता है। इसका जवाब हमने पिछले जलसे में अर्ज़ कर दिया। ये हमारी मारिफत पे डिपेंड है, हमारे इखलास पे डिपेंड है। अगर कोई दिखावे के लिए वहाँ पे सबील लगाता है तो शायद उसको उसी हिसाब से मिले। कोई अगर इखलास के साथ, खुलूस के साथ लगाता है तो उसको अपने खुलूस के हिसाब से वहाँ पे जितनी मारिफत ज़्यादा होगी उतना सवाब ज़्यादा होता चला जाएगा। खूब, ये तो उन लोगों के लिए फ़ज़ाइल हो गए कि जो वाक़ई खिदमत गुजारी कर रहे हैं ज़ायरीन की। ज़ायरीन के हवाले से हम क्या कहें कि ज़ायरीन के क्या वजीफ़े हैं? आज ज़ायरीन जो जा रहे हैं वो अपनी क्या ज़िम्मेदारी लेकर करबला जाएं, क्या ज़िम्मेदारी लेकर इस प्यादा रवी में जाएं, क्या वजीफ़ा अपना समझना चाहिए ज़ायरीन ने, ताकि एक मारिफत वाली ज़ियारत अंजाम दी जा सके? जी, तो ज़ायरीन की ज़िम्मेदारी से पहले मैं एक और हदीस का आखिरी हिस्सा में बयान करता हूँ। हदीस बहुत तवील है। उसमें, इस हदीस में है, हदीस कुदसी है ज़ाहिरन, इसके आखिर में फरमाते हैं, अला, जिब्राईल की ज़ुबानी ये हदीस है, एक तवील हदीस, उसका आखिर में है, अला वमन अनफ़क़ दिरहमन अला अज़ाइही व ज़ियारतिही, जो मौला के अज़ा में या ज़ियारत में 1 दिरहम खर्च करे तो ताजरत लहुल मलाइकतु इला यौमिल क़ियामह, मलाइका इससे तिजारत करते हैं। फ़ीमा युनफ़िक़ुहु
जिस राह में उसने खर्च किया है, वयुअती बिकुल्लि दिरहमिन 70 हसना, हर एक दिरहम के बदले में उसको 70 हसना अता करेगा। और वबना अल्लाहु लहू कसरन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक कसर बनाकर देगा, एक दिरहम के बदले में। जो लाख खर्च करता है तो उसके कसर भी सुभान अल्लाह, ज़्यादा होगा। बेशक। तो इसके साथ हम आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ज़ाइर की ज़िम्मेदारी, ज़ाइर को क्या करना चाहिए, बेशक क्या वजीफ़ा होना चाहिए, क्या वजीफ़ा होगा। 40 का हदफ और मकसद और फ़लसफ़ा जो होगा उसे हासिल करना होगा दुरुस्त, कि अहल बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें क्यों बुलाए हैं 40 को। करबला की तरफ हमें हमेशा करबला करबला, हाँ, और हमेशा हुसैन हुसैन का जिक्र हमें क्यों याद दिलाए हैं, क्यों ताकीद की है। नमाज में तुरबत करबला को रखने में फजीलत है। दुरुस्त, पानी पीना है तो हुसैन को जिक्र करो, कातिलीन हुसैन पर लानत भेजो। दुरुस्त, हर लहजे में नमाज के बाद भी हम हमेशा सलाम भेजते हैं करबला की तरफ रुख करके। तो हमेशा याद रखने की ताकीद क्यों हुई है। हदफ करबला, हदफ आशुरा और फ़लसफ़े आशुरा को याद दिलाना, उसकी तरफ चलना, उसको उस पर अमल पैदा होने के लिए। अभी जब हम, ये एक अजीम फुर्सत है हमारे लिए 40, मखसूसन जो अहले फ़िक्र व नज़र हैं, जो दीनी दर्द रखने वाले हैं, जो तालीम याफ्ता अफराद हैं, जो दर्दमंद अफराद हैं, उनको इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ से आप इस क़ज़िये को देखें, मैं एक बेनवान एक ज़ाइर, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, कैसे मुझे कदम उठाना है इस सफ़र में, कैसे मुझे अपने आप को बचाना है, कैसे तौबा व इस्तिग़फ़ार करके जाना है, यहाँ से मुझे क्या लेना है, क्या लेकर जाना है, कितने मुझे यहाँ से मुस्तफ़ीद होना है। ये एक इनफरादी वजीफ़ा है और एक इज्तिमाई वजीफ़ा है। आपके ज़माने में ये फ़ुर्सत पेश आई है कि करबला जाने वालों का ये जम गफ़ीर, ये अजीम समंदर लोगों का, या आपके ज़माने में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि ये हमें नसीब हुई है। क्या इनके लिए कोई प्रोग्राम बनाना, इनकी रहनुमाई करना, इनको जहद देना, इनको समत देना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो एक सबसे पहली ज़िम्मेदारी इस सफ़र में हमारी ये है कि ख़ुद वाक़ई करबला को ज़िंदा रखने की कोशिश हो। ख़ुद करबला में जो अजीम मुसीबतें नाजिल हुई हैं, जो मुसीबतें वहाँ पे आन पड़ी हैं अहले बैत पर, वो दोहराई जाएं, आने वालों को उनका ज़िक्र किया जाए। जो क़ुरबानी मौला ने दी हैं, असहाब अंसार ने दिए हैं, उनका ज़िक्र हो, तो सारे ज़ायरीन इससे इनसे मुत्तली हो जाएं, सबको पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि ये मसीह इस तरह वैसे ही हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, फिर एक मेले का शक्ल इख्तियार करे, फिर एक बेअसर, हाँ बिल्कुल इज्तिमा का शक्ल इख्तियार करे, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बिदअतें इसके अंदर, रसूमात बिदअतें इसके अंदर आ जाए, और इसके अंदर जो रूह है करबला है, जो रूह है हुसैनी है, वो इसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन इस पे काम कर रहे हैं। बहुत खूब, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरफ इशारा किया आपने कि दुश्मन इसको ज़ईफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। या कहीं पे जो मीडिया है हमारी दुश्मन, वो इस अजीम सफ़र में, इस अजीम इज्तिमा में जो कमज़ोरियाँ होती है उसकी तरफ वो फोकस करते हैं, वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ दी है, इतने सारे लोग हुसैन के नाम पे जमा हुए हैं, आपके पास आए हैं, यानी इस मसीर में वो आए हैं, मौला की तरफ वो जाने के लिए आए हैं। इनके लिए तग़ज़िये फ़िक्री, जिस तरह हमने अर्ज़ किया, इनको खाना खिलाना, इनको पानी पिलाना, इनके लिए सहूलियात फ़राहम करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अजीम सवाब का हामिल है। क्या इनको फ़िक्री ग़िज़ा पहुँचाना, इनके लिए हुसैन शनासी के लिए एहतिमाम करना, इनके लिए करबला शनासी का एहतिमाम करना, क्या ये खाना खिलाने से इसका सवाब कम होगा? क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी?
बेशक, बेशक। क्या करोड़ों की तादाद में लोग आए वहाँ पे और वो करबला को न समझ सके, वो हुसैन की मारिफत हासिल न कर सके, वो अब्बास की मारिफत लिए बग़ैर वापस जाए, वो शुहदाए करबला की कुर्बानियों को नहीं पहचान सके, तो क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की? नहीं। लिहाजा सबसे पहला मरहला खुद करबला शनासी है। हम पहले जाने, अपनी मारिफत बढ़ा दें, किताबों के ज़रिए, दुरूस के ज़रिए, तवस्सुल के ज़रिए, अहले बैत से मुतवस्सिल होकर ख़ुद उनसे चाहें उनकी अपनी मारिफत। जिस तरह अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ्सक, ए अल्लाह तेरी मारिफत मुझे अता कर, दर अहले बैत पे जाके उनकी मारिफत का तकाज़ा करें, उनसे मांगे। फिर लोगों को समझाना अहले बैत शनासी, हुसैन शनासी, करबला शनासी, करबला के जो बेमिसाल कुर्बानी के अलावा बेमिसाल जो इंसानी अक़दार, वहाँ पे वफ़ादारी, आपको छोटों पर रहम करना, बड़ों का एहतराम, या हत्ता दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला करना है, अक़दार की हिफाजत के लिए वहाँ पे कितनी कुर्बानियाँ वहाँ पे पेश की, और दुश्मन ने कितने मज़ालिम उन पे डाए, इन सब को बयान करने की, इन सब को सबके सामने रखने की, सबको बयान करने की ज़रूरत है। ये हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी है। यानी पहले आप माज़रत चाहता हूँ क़तअ कलामी के लिए, आपने फरमाया कि पहले फ़र्दी तौर पर मैं इसको ख़ुद समझूँ, और जब फ़र्दी तौर पे मैं आमादा हो जाऊँ तो कोशिश करूँ दूसरों तक मुंतकिल करूँ, ताकि वो कोई भी ज़ाफ़ ईजाद ना हो पाए इस राह में, और ये इस्तेहकाम के साथ कायम हो। बिल्कुल, जो ज़ाहिर आए वो मारिफत के साथ आए। दुरुस्त। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आने वाले ज़ायरीन में बेमारिफत ज़ायरीन आए, जो इसको बस सब जा रहे हैं हम भी जाते हैं, सब चलते हैं तो हम भी चलते हैं, इस तरह आए, और बामारिफत ज़ाहिर आए, करबला समझने वाले, मौला की कुर्बानी को समझने वाले, अपनी ज़िम्मेदारी को समझने वाले ज़ायरीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर इनकी तादाद में, बामारिफत ज़ायरीन की तादाद में अगर इजाफ़ा होते जाएँ तो हो सकता है चंद साल के बाद ये इनक़लाब महदी के लिए ज़मीन फराहम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इनक़लाब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु के लिए ये ज़मीन फराहम करें। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी है हमारी। फिर रब देना, भाई मौला ने इतनी कुर्बानी दी है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम मौला की कुर्बानी को रख दें साइड पे, ये जो इराक़ी मोमिनीन हैं, ये जो कुर्बानी देते हैं अपने पूरे साल की जमा पूंजी वो ला के वहाँ पे मौला के राह में देते हैं। भी तवज्जो दिलाएं, ये कुर्बानी देने वाला है। भाई इंसान के लिए 10 रुपये देना सख्त होता है, 100 रुपये पे इंसान लड़ने पे उतर आता है, हिसाब किताब करता है, 1000 पे वो अपने रिश्तेदारों के साथ हिसाब किताब करता है, लेकिन पूरे साल की जो आमदनी है वो ला के मौला के ज़ायरीन की खिदमत में वो डाल देते हैं। तो ये इनकी तरफ भी इंसान को मुतवज्जिह होना चाहिए। नहीं सिर्फ खाकर हम आगे गुजरे नहीं, बल्कि ये कुर्बानी दे रहा है ये मोमिन। आप पूछ लें बाज़ लोगों से कि आपके ज़रिए आमदनी क्या है, हम पूछते हैं बाज़ लोगों से, कहते हैं हम मजदूरी करते हैं, लेकिन वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस रास्ते में वो मौला की राह में, यानी सही मारिफत इन लोगों को है कि क्या क्या राह है जो। लिहाजा ये हमारे अपने अंदर पैदा करने की भी कोशिश करें। भाई ये इतनी कुर्बानी दे रहे हैं दीन के लिए, मौला हुसैन के लिए, आज़ादारी के लिए, ज़ियारत के लिए, एहयाए दीन के लिए, तो हमें भी इनकी तरफ कम से कम इनसे तो दर्स लेना चाहिए। यानी बाबसीरत हो के इस राह से गुजरने। हाँ, हर निगाह माशाअल्लाह, हर निगाह हमारी बाबसीरत निगाह होनी चाहिए। वो जो कुर्बानी दे रहा है देखें कि वो किस तरह की कुर्बानी दे रहा है, उस हर कदम पे एक सबक लेके आगे बढ़े। बहुत सारे आने वाले जो गैर मुस्लिम हैं या वो इसकी तरफ तवज्जो करते हैं, भाई क्यों दे रहे हैं इतना सारा खर्चा, क्यों बिल्कुल वो ज़्यादा मुतवज्जह है, मेरे ज़्यादा मुतवज्जह है वो इन चीज़ों की तरफ। लिहाजा हमें भी इनकी तरफ मुतवज्जह होकर दर्स लेने की ज़रूरत है। भाई उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन हमने क्या किया? क्या हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी ऐसे कुर्बानी दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं? जब इराक़ी दे सकते हैं, ईरानी दे सकते हैं, या दूसरे ममालिक से आने वाले कुर्बानी दे सकते हैं, तो हम भी दे सकते हैं। भाई हमारी निगाह तो होना तो ये चाहिए, हमारा
उसवा हसना खुद मौला हुसैन हैं, खुद करबला वाले हैं। हमारी शुआर है, हमारा नारा है, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज माकुम, एक काश हम आपके साथ होते तो हम भी अपनी जानें कुर्बान कर देते। जान कुर्बान करने के उस मरहले में हैं, लिहाजा ये चीज़ें इंसान के लिए आसान होनी चाहिए। तो बस बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि अगर ये ऐसे मारफत बामारफत और बाबसीरत अफराद की तादाद बढ़ती चली जाए तो वाक़ई हमारे नाजरीन के लिए एक बहुत अच्छा नुक्ता है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है, जो क़िबला ने फरमाया कि अगर इन बामारफत और बाबसीरत अफराद की तादाद बढ़ती जाए तो ये इमाम के ज़हूर की मुक़द्दमा साज़ी हो सकती है। ये इनकलाब जो आज करबला में बरपा है, ये इनकलाब महदी अलैहिस्सलाम में तब्दील हो सकता है। यहाँ पे एक सवाल ईजाद होता है और आपकी खिदमत में चाहूँगा कि आप इसका नाज़रीन को जवाब दें। क्या वाक़ई इस वक्त हम करबला को और अरबईन को बिलखुसूस इमाम के ज़हूर की मुक़द्दमा साज़ी तसव्वुर कर सकते हैं? वैसे एक आलिम का ये कौल किसी ने नकल किया था कि इस वक्त सबसे मज़लूम शख्स इस कायनात में मौला इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़ज़लुहु शरीफ इमाम महदी है। चूँकि दुश्मन तो खैर कहें वो नहीं जानते, उनका अक़ीदा नहीं है, लेकिन जानने वालों की तरफ से भी इमाम मज़लूमियत के शिकार हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें करबला के रास्ते में क़ियाम आशूरा के अंजाम देने वाले यानी मौला इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस नहज़त को पाए तकमील तक पहुँचाने वाली हस्ती का भी ज़िक्र करना चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए, यानी अपने ज़माने के इमाम को नहीं भूलना चाहिए। बहुत खूब, बहुत बेशक। इस बहस की तरफ आने से पहले एक जो आम शुबहा आप कहें या आम सवाल कहें, लोग पूछते हैं क्या अलामात ज़ुहूर में से हैं ये मशी, इज्तिमा अरबईन का ये इज्तिमा अलामात ज़ुहूर में से हैं। ऐसी गुफ्तगू सुनने में मिलती है, लेकिन आप अलामात ज़ुहूर के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं या जो रिवायात मौजूद हैं उनकी तरफ मुराजा करें तो उनमें इज्तिमा अरबईन या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इतनी तादाद में लोगों का आना ये ज़िक्र कहीं पे नहीं है। लिहाजा अगर कोई ये कहता कि ज़ुहूर की निशानियों में से, ज़ुहूर के अलामात में से ये हैं, तो ये अलामात ज़ुहूर में से नहीं है। यानी अलामात ज़ुहूर में से 5 क़तई अलामात और सैकड़ों गैर क़तई अलामात हैं, वो अपने जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनमें ज़ियारत अरबईन का ज़िक्र नहीं है कि ज़ियारत अरबईन पे लोग इतनी तादाद में आएंगे और लोगों का इज्तिमा होगा, ऐसी कोई अलामत मौजूद नहीं है। ज़ुहूर की निशानियों में इसका ज़िक्र नहीं है। ये एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता, क्या शराइत में से यानी मौला के ज़ुहूर के लिए ज़मीना साज़ी करने वाली चीज़ों में से है मुक़द्दमा साज़ी से पहले, उसमें 3 चीज़ें हैं, अल्लाह की मशीयत, खुद मौला और लोगों यानी ज़मीना साज़ी होना, आमादा होना लोगों का और लोगों की तरफ से आमादगी। इन चीज़ों का ज़िक्र है, लेकिन फिर भी अरबईन का ज़िक्र नहीं है। इनसे हट कर आप ये कहें क्या इंसान सबकी ज़िम्मेदारी है ज़ुहूर के लिए ज़मीना साज़ी करना, बिल्कुल मुक़द्दिमा फराहम करना, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। चूँकि इमाम गैब में जाने में लोग मुअस्सिर हैं, लोगों की तरफ से ख़तरा था मौला को, मौला की जान को ख़तरा था, लिहाजा मौला के ज़ुहूर के लिए भी मुक़द्दिमा फराहम करना ये लोगों की ज़िम्मेदारी है। अभी इस अजीम इज्तिमा से आप यह काम बनहव अहसन अंजाम दे सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुक़द्दिमा साज़ी के लिए, महदी शिनासी के लिए, ज़ुहूर के लिए 1, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग आपके पास आए हुए हैं,
यानी आपके पास से मुराद करबला में आपके फिक्री मरकज़ में, एतिक़ादी मरकज़ में लोग आए हुए हैं। अगर आप ये पैगाम इमाम शनासी ज़ुहूर का मसला अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहें तो आपको 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में कितनी ज़हमत होती है? वैसे तो पहुंचाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करबला में इस वक्त अरबईन के मौके पे बहुत आसान है। मख़सूसन अगर आप फेस टू फेस उन तक पहुंचाना चाहें तो बेहतरीन जगह अरबईन तो है। बेहतरीन मुनासिबत है, बेहतरीन फ़ुर्सत है हमारे लिए। जो भी इमाम ज़मान के ज़ुहूर के लिए मुक़द्दिमा साज़ी करना चाहिए तो उस मुक़द्दिमा साज़ी के लिए एक तो शख्सियत साज़ी, अफराद सालिह और शाइस्ता अफराद की तरबियत, बाकिरदार जवानों की तरबियत, इमाम शनास लोगों की तरबियत, ख़ुद इमाम की मारिफत देना, ये सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है। दुरुस्त। एक तो आप आतिफ़ी एतबार से, एहसासाती एतबार से हर ज़ाहिर को ये सोचना चाहिए कि मेरे मौला भी मेरे साथ हम कदम है इस सफ़र में, मेरे मौला भी लब्बैक या हुसैन के निदा के साथ, इस्तिग़ासे के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। एहसासाती तौर पर इमाम के साथ हम कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा सिपह सालार अब्बास अलमदार हैं, तो हकीकी वारिस अज़ाए करबला मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। यकीनन आप यहाँ पे ज़ायरीन की इस ज़ियारत को नज़ारा कर रहे होंगे, मशी कर रहे होंगे यहाँ पर। लिहाजा इदराक हर एक अपने एतबार से ये सोचे मेरे मौला इस सफ़र में मेरे साथ हाजिर हैं, इस सफ़र में मेरे साथ कदम उठा रहे हैं। ये अपने तौर पर इमाम के साथ एक राबिता बरकरार हो। ऐसा ना हो कि हम आए हैं वाक़या करबला और क़ियाम करबला, इनक़िलाब करबला की याद दहानी के लिए, इसको दोबारा जहनों में ताज़ा करने के लिए, जहनों में इसको दोबारा याद दिलाने के लिए, लेकिन हम वारिस करबला को भूल जाएं, मुंतक़िम खून हुसैन को हम भूल जाएं, वारिस करबला को हम भूल जाएं, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा एक तरफ वाक़या करबला और एक तरफ दिल में ये उम्मीद भी हो कि कल मेरे मौला ने आना है और इस वाक़े का, इस हादिसे का आपने इसको पाए तकमील तक पहुँचाना है। कातिलों से आपने इंतकाम लेना है, ज़ालिमों से आपने इंतकाम लेना है। लिहाजा मैं फ़िक्री तौर पर अगर मैं सन 61 हिजरी में मौला के साथ करबला में नहीं जा सका तो मैं कल मौला के ज़ुहूर के वक्त में मौला के पास हूँगा और मौला के कातिलीन से, मौला सैयद शुहदा के कातिलीन से मैं इंतकाम लूँगा। अपने अंदर ये एहसासात और ये जज्बात, ये मानवियत और रूहानियत और अक़ीदा मजबूत करें, फिर अपने साथ जितने भी हैं उनको भी याद दिलाएं, भाई इमाम ज़मान हकीकी वारिस करबला, हकीकी इस करबला के खून का इंतकाम लेने वाला हमारे साथ में है और हमने उसके लिए आमादा होना है। लिहाजा इस फुर्सत से हर एक को, हर ज़ी शऊर को, हर साहिब अक़ीदा को ये याद रखना चाहिए कि इस सफ़र में हमने लोगों को करबला की तरफ और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दावत देनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने इस वक्त करबला को ज़हूर से मुत्तसिल करके दिखाया हमारे नाज़रीन को, और वाक़ईन मुक़द्दमा साज़ी होती नज़र आ रही है ज़हूर की करबला से। लेकिन ज़रूरी है कि हर शख्स फ़र्दी तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी को जाने। और गुफ्तगू का इख्तिताम बहरहाल अपने आखिरी इमाम के नाम से ही हो रहा है, इससे बाबरकत क्या हो सकता है। नाज़रीन की खिदमत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जैसे क़िबला ने अर्ज़ किया कि ज़हूर आखिरी इमाम का हमारी ज़िम्मेदारी पर मुनहसर है। जिस हद तक हम इमाम के लिए आमादा होते चले जाएंगे, ज़हूर उतना नज़दीक होता चला जाएगा। जिस हद तक हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते चले जाएंगे, ज़हूर नज़दीक होता चला जाएगा और उसकी बेहतरीन राह, उसका बेहतरीन मकाम, उसकी बेहतरीन फ़ुर्सत इस वक्त करबला है। अरबईन के मौके पर जो आज पूरी दुनिया एक मुकाम पर हुसैन के नाम पर जमा हो रही है, हुसैन का
خون کا انتقام لینے والا بھی اسی جگہ سے ظہور کرے گا انشاءاللہ، کہ وہ صدا بلند ہوگی کہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ، ان جدی الحسین طرح عریانہ۔ جب یہ صدا بلند ہو تو ہم آمادہ ہوں کہ ہم اپنے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ ہوں کہ ہمارے قدم اٹھ سکیں۔ ان مشکلوں سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں آج اسی وقت اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح منتظرین میں شمار ہوں اور ظہور کے وقت ان کے ناصرین میں اور ان کی نصرت کرنے والے میں شمار ہوں۔ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اس آخری دعا کے ساتھ کہ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔